we head into our next segment called Speak Up Q&A. This is all about you, what you think, what you have to say. 19 months, 19 emotion. According to you, which is the most powerful emotion that you connect with? और आपने क्या महसूस किया? आपके मुताबिक कौन सा इमोशन है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा आपने फील किया? या फिर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इमोशन जिसमें आपको कुछ ऐड करना है, कोई ऐसी बात सुशांत के बारे में जो आपको कहनी है, आप आइए और अपनी बात रखिए. आई एम शेयरिंग द लिंक विथ यू. यू कैन कनेक्ट. आई विल रिमाइंड व्यूअर्स, tomorrow at 9 p.m. we'll be doing a special show on what is one thing that you have experienced during last 19 months. आपके मुताबिक वो एक चीज क्या है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो आपने महसूस की, जो आपकी जिंदगी में बदला सुशांत के कारण पिछले 19 महीनों में. तो 19 महीनों के इस जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन में आपने क्या पाया, आपने क्या खोया और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने वो कौन सा पल था जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट at 9 p.m. tomorrow in the special on Sushant Singh Rajput and the feelings and the experience that you have gone through related to the campaign. So tomorrow at 9 p.m. we'll be talking exclusively on that because that's the special that we are doing at 9 p.m. not 10 p.m. at 9 p.m. tomorrow. But for now, I've shared the link. Please, you can connect and you can come and talk about the emotion that according to you is the most strong emotion that you felt in last 19 months. These are 19 emotions that I presented. You may have felt it multiple times. You must have seen it sometime. You may have seen it once, or maybe you have not experienced it at all. It's all up to you. But you can come and speak about what was the one thing, what is the emotion that you felt was the strongest when it came to Sushant Singh Rajput campaign. That is justice for Sushant Singh Rajput. His films, whatever, Bollywood, the boycott Bollywood call, his films, his life, his family, whatever you think, you can come and speak about that. The family is all set. Family is all ready to fight it. Priyanka has made it very, very clear that we are not going to give up till the time justice is served. कोई किसी तरह का कोई हिच नहीं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं. ये फैमिली लड़ने को तैयार है, आप लड़ने को तैयार हैं. फिर कौन सा इमोशन है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैनी हैज जॉइंड. I was expecting her to come and be our first speaker, and she is there. So let's connect straight away and go to Manny. Yes, Manny, please go on. Good evening, sir. How are you? Yeah, please go on. So I think you've given a very good, summary of how what all things and what all emotions people have felt over the last 19 months. So I would just like to share my experience, and I'm really going to be very frank about the journey. What was my journey? So the day Sushant Singh Rajput's news came on 14th June, I actually heard it for a second and then just ignored it. So I had just watched 2 movies of Sushant and I did not pay much attention to the news. But what I had done was that I had watched 3 interviews of Sushant, 2 of which were Anupam Chopra's interviews and one was this IIT Bombay interview. And I had related to him, as far as his philosophy of life was concerned. Okay. So, like mostly people, they even today they generally focus. So I am different. My perspective is different because mostly people focus on 14th of June and what happened on that day, whereas I actually went on understanding Sushant's mind, because the reason which was announced was related with his mind. Okay. And I had remembered those 3 interviews, and I couldn't really it didn't connect with me. So I revisited those interviews, and then within a week's time, I knew he had not committed suicide. So I don't know him. I didn't know him. That is my journey of no reaction. 19 months down the line, I come and speak for Sushant Singh Rajput whenever I get an opportunity on your show. What has led to that journey and how much research I ended up doing on Sushant and what I understood of him. And the more I understand him,
the more the theory of what was announced on 14th of June cancels in my mind. I am not looking at who killed, why, when, where, how. Because for me, the kind of person Sushant is, and what I can relate to him, he can never ever take such a drastic step because he was a fighter and he was a fighter through. So I think that is what has touched me the most. Like you have very correctly said, the emotions that we have felt for Sushant. Because according to me, Sushant is an emotion and he's connected emotionally with so many people who whether knew him as an actor or didn't know him. So I was not such a big fan of Sushant. I'm going to be very frank because now I understand the reason why. Because Sushant was very humble and he never really broadcasted what he did. He kept it to himself. Whereas other actors actually went and threw it on your face. So you notice them more. Because Sushant had come to the industry for the passion of acting. He had not come in the industry to become a star. He had come in the industry to become an actor. And the more I started discovering Sushant, and I was like, today my emotion is like, wow, I have never, ever seen an actor in the whole world, and I am a big movie buff. In the sense, I just don't watch Hindi movies. I watch movies across the countries. I watch multilingual movies. I watch English movies. So there is no barrier as far as language is concerned. But I have never seen any actor in the world who has so much uniqueness as Sushant. He was just not only a great actor. Now that when you see the range he did, 10, 11 movies that he did, the range, each movie is so different from the other. Besides that, I mean, just to see his intelligence and his interest in astronomy and the way he did his exercises and the way he did all his hobbies. I mean, he had so much talent, not only just as an actor, but also as a human being in various fields. I have still yet to see any famous person who has so much talent. He's like a real Superman, only that he couldn't fly and he wanted to do that as well. So for me, just the discovery of Sushant and he was there all along is like a wow factor for me. Who was this guy? He was just out of this world. इतना टैलेंट, इतना हुनर, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी हम्बलनेस, इतनी काइंडनेस, इतना टैलेंट, इतना मतलब कि वो जो चीज भी लेता था इतने पैशन से करता था एंड ही वाज मतलब कि आउटस्टैंडिंग इन इट. मैंने अभी तक ऐसा इंसान नहीं देखा है अपनी पूरी जिंदगी में. एंड मैं मतलब कि बहुत बड़ी, जैसे मैंने बोला है, मैं बहुत बड़ी मूवीज की वो हूँ, ऐसा मैंने देखा ही नहीं है. अगर आप साइंटिस्ट होते हो तो आप एक फेमस साइंटिस्ट होते हैं, आप में इतने ढेर सारे टैलेंट्स भर के नहीं होते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ वर्क ही वाज डूइंग बिसाइड्स एक्टिंग, he just kept to himself. He was quiet, he never advertised about it, and people took advantage of that. And it was because of his introverted nature. He was not a show off, he was an artist. I agree. So for me, sir, that is the wow factor as far as my journey. What is the one emotion that you think is the most powerful emotion that you have experienced in last 19 months? One emotion, because we have all gone through various emotions. 19 yes. is just one number that I have picked. There must be multiple and millions of emotions that people must have gone through. There were people जो आते थे शो में. I think I remember a lady from Brazil जिन्होंने कनेक्ट किया था, and she was crying and I was surprised that she came to the show, spoke and she started crying. वो रोने लगी. अब वो ब्राजील से थी. ब्राजील में, फिजी में, मतलब ऐसे ऐसे जगह से लोग कनेक्ट हुए थे जो मैं सोच ही नहीं सकता था. वो लोग आके रोने लगते थे. ब्राजील, that lady from Brazil, she is connected. I don't know whether she is still watching my shows. I would love to have her because I know the kind of emotion that she was going through at that time. वो शो में आई,
3 मिनट बोला, उसके बाद शी वॉज क्राइंग, रो रही थी. क्यों? बिकॉज शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज कंप्लीटली शॉक्ड. सो सर मेरा एक्चुअली इस बारे में मैंने बात बिल्कुल नहीं करी है, बिकॉज मेरा जो पर्सपेक्टिव है, एंड दैट इज व्हाई आई रिलेट अ लॉट टू सुशांत, मेरा देखने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है. मतलब कि मैं थोड़ा जिस चीज़ में, जैसे हम 14 जून और मर्डर और ये सब की बारे में बात करते हैं, किसने किया है ये वो एंड ऑल दैट, द लॉजिक बिहाइंड इट और दैट रिसर्च आई हैवंट डन दैट मच एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट. मेरा ज़्यादा रिसर्च सुशांत के ऊपर है, सुशांत एज अ पर्सन, सुशांत की जो क्वालिटीज थी, क्योंकि मुझे ये अंडरस्टैंड, मेरे लिए वो जरूरी था कि उसका माइंड कैसा है एंड वेदर ही कुड टेक सच अ स्टेप. सो दैट आई टोल्ड यू विद इन द फर्स्ट वीक मेरा पहले उसी, और तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक्चुअली. और जो आप इमोशन की बात कर रहे हो ना, मेरा सबसे ज्यादा इमोशन है पैशन, पैशन फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत. That is what drives me every Basically, time I come on your show. your emotion is the last emotion, which is to keep the show on. Basically, Yes. never to say सर over. मेरी सिंपल सी फिलोसफी है जो सुशांत ने हमेशा बोली है, टू बिलीव. अगर अगर आपके, और तभी उसकी वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है. उसने बोला था अगर आपके सिचुएशन में अगर सब चीज आपके अगेंस्ट जा रही है, आपको चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, और जहां जो आपका गोल है वो अचीव करने की तरफ जब आप जाते हो, उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं, सब चीजें अगेंस्ट हैं, नेचर अगेंस्ट है, दुनिया अगेंस्ट है, पर अगर आप बिलीव करोगे कि वो बात सच होएगी तो वो होगी. ये मेरा 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 ये चीज है, मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, सुशांत को जस्टिस मिलेगी. अब सबका अलग अलग तरीका होता है देखने का. किसी ने लिखा है, and this is brilliant, कि my most regretting moment was when I came to know his qualities and talent after his death. Yes, that is what happened to all of us ना सर, वही तो मैं बोल रही हूँ. मैं तो कह रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था कि he's from Bihar. I was surprised that he comes from Bihar. I had no connect at all. I Yes. did not know, but I only knew one thing, that whatever the circumstances were at that time, जो लोग भी लोगों ने बोला, और जब हमने उसको गौर से देखा, तो इतनी बात समझ में आई कि सब कुछ हंकी डोरी नहीं है, मामला गड़बड़ है. When you visually see the facts, and that is the reason why what made me question it is because I thought ये 2+2 मैच नहीं कर रहा है, 4 नहीं हो रहा है, ये 2+2 5 बता रहे हो आप, ये 2+2 5 हो ही नहीं सकता, ये 2+2 4 होना है, इट कांट बी 5. और जो फैक्ट्स अराउंड द केस है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग अस. सो द सेंस ऑफ शॉक प्लस सरप्राइज प्लस ट्विस्ट प्लस मिस्ट्री प्लस एंगर कंबाइंड जो निकला ना, दैट क्रिएटेड अ सस्पिशन. वो जो सस्पिशन है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है. अकॉर्डिंग टू फॉर मी द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन इज सस्पिशन. सर मेरा तो मतलब कि वो तो सब है ही, पर अगर मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलोगे ना, अगर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बोलोगे आज की डेट में, मेरा ये है कि मैं ये बिलीव करती हूँ, और तभी मैं अपने हिसाब से पोएटिक जस्टिस को भी मैं बहुत बड़ा जस्टिस मानती हूँ, जो जनरली लोग इग्नोर करते हैं. मैं सोचती हूँ कि अगर इंसान जस्टिस नहीं देता तो भगवान जस्टिस दे रहा है, और हम सबको नोटिस करना चाहिए. जस्टिस की आज मैं नहीं बोल रही है कि पोएटिक जस्टिस को मानती हूँ, पोएटिक जस्टिस के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था. सब तो अरे नहीं मिल रहा, नहीं मिल, बताना पड़ा भाई ये पोएटिक जस्टिस नहीं है. पोएटिक जस्टिस, अगर हम लोग नहीं बात कर रहे होते इस प्लेटफॉर्म पे पोएटिक जस्टिस को लेके, तो शायद मैंने कोई बात कर भी नहीं रहा होता पोएटिक जस्टिस के. आज सब लोग बात कर रहे हैं. गुड दैट एटलीस्ट पीपल रियलाइज कि केवल डायरेक्ट जस्टिस नहीं होता है, पोएटिक जस्टिस भी होता है. आप एक नहीं, बार बार मल्टीपल टाइम शोज में हमको बोलना पड़ा कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड पोएटिक जस्टिस आल्सो. आप एक चीज गौर से देखो, मैं 2 दिन से शो कर रहा हूँ विराट कोहली का, करेक्ट? नाउ गो थ्रू द रिकॉर्ड ऑफ विराट कोहली. नाउ आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ऐसा क्यों हुआ है, दो इट हैज नथिंग, नो डायरेक्ट कनेक्ट, बट देयर इज द इनडायरेक्ट कनेक्ट. अब इनडायरेक्ट कनेक्ट क्या है? हु इज विराट कोहलीज वाइफ? अनुष्का शर्मा. Who is Anushka Sharma? Sushant Singh Rajput's co-actor in PK. Yes. His second or third movie, yes. right? Yes. She kept quiet. She did not utter a single word in favor of the entire campaign. So she was supposed to be his co-actor in Pani also. Whatever. I'm saying whatever. I'm just telling you. Because at least one movie तो she has done with him, ना? PK, right? और वो उसकी co-actor थी. बट इस पूरे कैंपेन में जो पब्लिक चिल्ला रही थी कि व्हाई इज बॉलीवुड नॉट स्पीकिंग, व्हाई इज बॉलीवुड नॉट स्पीकिंग, व्हाई आर द को एक्टर्स नॉट स्पीकिंग,
Anushka Sharma also did not speak. Anushka Sharma also kept quiet. अब अनुष्का शर्मा इज मैरिड टू विराट कोहली, करेक्ट. अब विराट कोहली का रिकॉर्ड आप देखिए. विराट कोहली का रिकॉर्ड प्री-20 देखिए और पोस्ट-20 देखिए. प्री-20 विराट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैंने रिकॉर्ड निकाल के दिखाया ना कल, फिगर्स दिखाए, आप प्लीज गो एंड चेक. 20 से पहले टिल 2019 विराट्स एवरेज परफॉर्मेंस, टीम पोजीशन, एवरीथिंग इज ऑन टॉप. और 20 के बाद से देयर इज अ डिप. आप प्लीज गो एंड नोटिस, चेक. और आज विराट ने पहले क्या खोया? T20 कैप्टनसी. फिर क्या खोया? वनडे की कैप्टनसी. अब क्या खोया? टेस्ट कैप्टनसी. नाउ देयर इज अ डाउट वेदर ही विल कंटिन्यू एज अ प्लेयर और नॉट. ऐसा कैसे होता है भाई? 17 महीने में इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे हो सकता है किसी का, वो भी जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. दैट मैन वाज ऑन टॉप एंड टुडे ही इज स्ट्रगलिंग. 17 महीने में कोई मुझे समझाए कैसे होता है. पोएटिक जस्टिस ना बता के नहीं आता है. यस, इसके कोई आवाज नहीं होता है, इसे कुछ पता नहीं होता है. लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको ही एनालाइज करूं ना 1 मिनट के लिए, आई शुड लुक एट द अदर साइड और कनेक्ट करूं, तो he is married to Anushka Sharma. Anushka Sharma is his co-actor. Anushka Sharma did not speak. People anger is against all those who did not speak. Anushka Sharma is included. Here's the man who was on top 1.5 years ago. Today he is struggling. What else do you conclude then? सर एक एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है. उसने बोला था कि सबसे ज्यादा डेंजर वो लोग नहीं है जो क्रुएलिटी करते हैं. सबसे ज्यादा डेंजर तब है जब जिनके ऊपर क्रुएलिटी होती है या जो देख रहे होते हैं इस क्रुएलिटी को, वो बोलते नहीं है. तो आप ज्यादा सिन तब करते हो जब आपको पता है कुछ इनजस्टिस हुआ है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे. एंड दिस इज फॉर ऑल द मेंबर्स एंड ऑल द पीपल इन द कंट्री. That is true. नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन. अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो आप उसके भागीदार हैं. बिल्कुल, बहुत ये हम सबको सोचना चाहिए. गलत हो रहा है किसी के साथ और आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि गलत हो रहा है इसके साथ, तो फिर आप उसके पार्टनर हैं उस क्राइम में. यू आर अ पार्टनर इन दैट क्राइम. यस, एज सिंपल एज दैट. as simple as that. Being silent is acceptance of guilt, number 1, and being silent is supporting the wrong. Always, Yes. always, Yes. no doubts. यस, तो इसी करके मेरा सर सबसे ज्यादा इमोशन यही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत बिलीव करता था, और मैं अपनी लाइफ में भी इस चीज को बिलीव करती हूँ कि अगर आपके खिलाफ सब कुछ हो, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा अपना रास्ता, पर अगर आप विश्वास रखेंगे तो वो रास्ता जरूर पाएंगे. पर वही लोग रास्ता पा सकते हैं जो विश्वास रखते हैं. हर एक इंसान नहीं. आपको वो बिल्कुल विश्वास रखना पड़ेगा कि जस्टिस मिलेगा तो मिलेगा. सुभाष सही कह रहे हैं. सुभाष एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं और वो हालांकि आज के टॉपिक का नहीं है. सुभाष, मैं इस टॉपिक को आपको लूंगा आने वाले 2-3 दिन में. अभी तक 21 तक मैं डेली शो कर रहा हूँ. सो सडनली ये क्वेश्चन आएगा बिकॉज आई विल डू टच ऑन वन ऑफ द डेज आपका वाला टॉपिक जो आप कह रहे हैं ना. सुशांत केस को जितना उछाल सकते हो उछालो. संविधान में बोलने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं चलता, बस पुख्ता सबूत चलता है. बिल्कुल सही बात है सुभाष, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ये आपको मालूम हो, संविधान भी समझते हैं आप और कानून भी समझते हैं आप, तो ये भी समझिए एक केस को साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है, डिफेंस का नहीं. और प्रोसिक्यूशन का केस क्या है? ये सुसाइड है, तो साबित कीजिए सुसाइड. और डिफेंस का काम है ये साबित करना कि सुसाइड नहीं है. ये डिबेट तो मर्डर का है ही नहीं ना, ये डिबेट तो सुसाइड का है. तो संविधान समझते हैं और कानून समझते हैं, तो इस देश का कानून कहता है कि केस को साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है. सीबीआई को साबित करना है क्या? ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, और डिफेंस साबित करेगा कि ये मर्डर का केस है. ये सीबीआई को मर्डर का केस नहीं साबित करना है, इस गलतफहमी मत रहिए. प्रोसिक्यूशन को, सीबीआई को साबित करना है कि ये सुसाइड है, और सुसाइड को साबित करने के लिए सबूत चाहिए, मर्डर को साबित करने के लिए नहीं. तो जिस सबूत की आप बात कर रहे हैं उसकी जरूरत सीबीआई को है, और वो सुसाइड को साबित करने के लिए है, मर्डर को साबित करने के लिए नहीं. क्योंकि मर्डर का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, 302 का तो जिक्र ही नहीं है अभी तो ये केस सुसाइड का है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का. कोर्ट में जाइए और साबित कीजिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, और अगर नहीं साबित कर पाए तो केस आपका गिरता है, डिफेंस का नहीं. यस, गो अहेड.
कानून के बारे में, संविधान के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर आके बात करेंगे. I will always have an answer. Yes, go ahead, man. Yes, Mani, just stay on. I'll continue. Payal has come, so let her speak and then you come and pick up. Okay. Yes, Payal, please बोलिए. अच्छा, 1 second. Yes, Payal. सर, आपने इतने अच्छी तरह से हम लोगों को एनालाइज किए हैं और थैंक यू स्पीक अप इंडिया के लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आकर हम अपनी बातें और सुशांत से कैसे हम लोग रिलेट कर पाते हैं खुद को, ये हम सब के साथ शेयर कर पाते हैं. क्योंकि सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि सब कोई आके ईच एंड एवरीवन से हम लोग इंडिविजुअली बात करें. लेकिन अगर मैं कनेक्ट हो रही हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, शायद मेरे थ्रू वो कनेक्ट हो पा रहे हैं कि हाँ ये हम लोगों की बात है. शायद सब कोई ऑन एयर आके नहीं बोल पाते. तो ये तो पहले थैंक्स आपका जाता है, क्योंकि अगर आप इस केस को इस तरह से हाईलाइट नहीं करते तो हम लोग रिसर्च भी शायद इस तरह से नहीं कर पाते और इस तरह से सोच नहीं पाते पहले दिन से आफ्टर 16 जनवरी के ऐसा कुछ हो सकता है. क्योंकि ऐसे बहुत शो आपने किए हैं और हमने भी आकर बोले हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा ये हो सकता है, वो हो सकता है. मर्डर एंगल में सुइसाइड क्यों नहीं हो सकता है, इसका जैसे आपने अभी कहा है हजारों एंगल हम लोग अभी बैठकर दे सकते हैं. इतने सारे शो है हम लोगों के पास. तो मैं इस बारे में आज नहीं बात करूंगी. तो इमोशन के बारे में यही कहूंगी. पहला इमोशन जो यही था मेरे लिए, बॉलीवुड के कोई स्टार पढ़े लिखे भी हो सकते हैं. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि कोई इंजीनियर बॉलीवुड को आने के लिए अपना इंजीनियर, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं. हम लोगों की लाइफ की गोल ये है कि बेटे इंजीनियरिंग में हो तो पढ़ाई करो, अपना गोल सेट करो, एक एमएनसी कंपनी में अपना काम लो और अपने किरण के पापा जी और उनके बहने के उनको सपोर्ट किए हैं कि ना बेटा तुम सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, अपने करियर को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाओ. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था कि कोई एडुकेटेड लड़का भी फिल्म स्टार बन सकता है. लेकिन मुझे अफसोस इस बात की है कि ये मुझे सुशांत के जाने के बाद पता चला. बहुत सारी बहुत यही कारण है कि सुशांत के आने के बाद, इंडस्ट्री में आने के बाद, कृति सैनन जो इंजीनियर है वो भी आई, कार्तिक आर्यन जो इंजीनियर है वो भी आए. और आज अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्तिक आर्यन भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कृति सैनन भी स्ट्रगल कर रहे हैं. वो बोल नहीं सकते हैं बट वो इनडायरेक्टली इस बात को बता रहे हैं. प्लीज गो एंड लिसन टू देयर इंटरव्यूज, डिफरेंट इंटरव्यूज. एक इंटरव्यू नहीं, बार बार और अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने बार बार कहा है और इंडिकेट किया है दैट दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट गेटिंग द वर्क दैट दे डिजर्व. सो ये इंडस्ट्री पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या करती है, वो सुशांत सिंह राजपूत इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ दैट. और उसके बाद जो लोग आए हैं पढ़े लिखे, उनके साथ भी इंडस्ट्री वही करना चाहती है कि वो किसी तरह बाहर हो, क्योंकि इंडस्ट्री 10th और 12th पास या फेल वालों के लिए है, ये इंडस्ट्री पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं. और एक इंटरव्यू में सुशांत ने शायद किसी फीमेल प्लेयर के सामने, ऐसा कोई इंटरव्यू था, मुझे इसका नाम थी से याद नहीं, मैंने आज ही वो इंटरव्यू देख रही थी. तो उसने कहा था कि अगर कोई अपने लक्ष्य को, गोल को, जैसे कि अर्जुन की आंख की तरह अगर समझ लेना कि हमें वो पाना है और उस तरह से हम लोग अगर आगे जाए तो हम लोग वो पाकर ही रहेंगे. अगर हम लोग जेन्युइनली उस चीज को पाना चाहते हैं, कुछ दूसरे तरीके नहीं, कुछ फ्रॉड करके नहीं, अगर हम लोग जेन्युइनली ये सब करना चाहते हैं तो हम लोग डेफिनेटली हम लोग ये पा सकते हैं. तो मेरे लिए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान जो शायद मुझे याद नहीं, सुशांत शायद 23-24 ऐसे एज में आया होगा, तो इस तरह से अगर लक्ष्य बना सकते हैं तो हम लोग जो बच्चे से लेके बूढ़े तक इस जस्टिस के मूवमेंट है, तो हम लोग अपना गोल को क्यों नहीं सेट कर सकते हैं कि हम लोग को जस्टिस चाहिए. हम लोग को उछल कूद नहीं करना है कि पाएंगे नहीं पाएंगे, ये पाएंगे कब पाएंगे. जैसे सुशांत अपने गोल को, लक्ष्य को सीधे रख के चलते थे ना कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है, मुझे एक्टर बनना है, और इसलिए उसने 3 साल, शायद मैंने ये सुना है कि काइपोची से पहले उसने 3 साल अपने लाइफ करियर का उसने सिर्फ एक्टर बनने के लिए छोड़ के रखा था, होल्ड पे रखा था.
तो अगर एक इंसान इस तरह से डेडिकेटेड हो सकते हैं, तो हम लोग घर बैठे डिजिटल मूवमेंट करके और ये सब करके अपने जस्टिस को पाने के लिए अपना मूवमेंट क्यों नहीं चला सकते हैं? तो मैं अब सबको अपील करूंगी कि प्लीज होप मत छोड़िए, डोंट लूज होप, क्योंकि ये केस अभी सवाल भी उठाना सीबीआई सवाल उठाना ना नहीं। पायल, सवाल उठाना सबको पसंद नहीं आता है। सवाल जब भी कोई उठाता है तो उसके काउंटर करने के लिए 10 लोग खड़े होते हैं, ये नेचुरल रूल है। आज सोशल मीडिया है तो सुशांत पे सवाल उठ रहे हैं। कल सोशल मीडिया नहीं था तो दिव्या भारती की डेथ चुपचाप साइलेंट डेथ हो गई, प्रत्युषा बनर्जी की डेथ साइलेंट डेथ हो गई, नफीसा अली की डेथ साइलेंट डेथ हो गई, जिया खान की डेथ साइलेंट डेथ हो गई। क्या किसी भी इन किसी भी केस में क्या सवाल नहीं थे क्या? और सवाल उठाना सर मैं अगर लोग ये और बड़ी अजीब बात, यस गो अहेड। सर मैं एक बहुत अजीब बात मैं उस दिन सोच रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ बात हो रहे थे, जैसे फ्रीडम फाइटर होते हैं ना, हम लोग देश के लिए बलिदान करके चले गए हैं, मुझे पता नहीं कैसे लगता है कि ये सब लोग बॉलीवुड के लिए बलिदान करके चले गए हैं, कि अपने एक के बाद एक अपना डेथ को ऐसे बलिदान करके चले गए हैं, कि एक के बाद एक चले गए हैं और बॉलीवुड के रास्ता क्लियर करते चले गए। लेकिन अब बस ये एक अलग एंगल है टू सी दैट, मतलब ये जस्ट एक थॉट है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। थॉट आ सकता है कि एवरीथिंग हैज अ वैल्यू। तो जो जिसने भी जान गंवाया उसके बाद कुछ ना कुछ तो होता ही है। उसी का नतीजा है कि शायद लोगों ने दिव्या भारती के डेथ को टॉलरेट कर लिया, नफीसा अली के डेथ को टॉलरेट कर लिया, जिया खान के डेथ को टॉलरेट कर लिया, प्रत्युषा बनर्जी के डेथ को टॉलरेट कर लिया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को टॉलरेट नहीं किया। आप डिसाइड करोगे क्या? आप डिसाइड करोगे कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, या पब्लिक ये डेमोक्रेसी है कि क्या है कि पब्लिक आप ही डिसाइड कर लो कि पब्लिक किस क्वेश्चन को उठाए और किस क्वेश्चन को नहीं उठाए। इस डेमोक्रेसी में सवाल उठाने का हक है, सवाल दबाने का हक नहीं है किसी को। सवाल को दबाता है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो सवाल उठाता है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी में सवाल उठाने का हक है और सवाल का जवाब मिलने का भी हक है। क्वेश्चन ये है कि इस केस में केवल सवाल उठ रहे हैं, जवाब एक भी नहीं मिला है। आई एम कमिंग ऑन दैट, आई विल कम एंड स्पीक अबाउट दिस टॉपिक स्पेसिफिकली ऑन अ डे एंड आई विल से व्हाई इज इट कि इतने सारे लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं। क्यों? फिर डेमोक्रेसी नहीं। अगर ये नहीं तो फिर डेमोक्रेसी नहीं। यस गो अहेड सर। तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या होगा? हम लोगों के संविधान में तो लिखा हुआ है ना कि हम लोग बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। जैसे इस वजह से ही ना फेसबुक पे हम लोग या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग ट्वीट कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि सुशांत क्यों जिंदा है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग के सबके, क्योंकि सुशांत की वजह से जिंदा है। कोई अगर दूसरा कोई होता, उसमें इतना टैलेंट नहीं है जो टैलेंट, फुल ऑफ पैकेज था सुशांत, टैलेंट का भरमार था सुशांत। कोई एक इंसान में इतना टैलेंट, ज्ञान गुरु, किसी ने यूट्यूबर ने तो उनको एज अ जोक कहा है कि लोग आ गए ज्ञान गुरु। तो इस तरह से लोग बोलते थे, तो वो मजाक में सब कुछ हटा। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको कोई बोलेगा प्रोफेसर, कोई बोलेगा ज्ञान गुरु। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया विराट कोहली का, मैं उसी का विराट का ही दूसरा एग्जांपल देता हूं। विराट कोहली इज द बिगेस्ट शाइनिंग स्टार राइट नाउ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको पास उससे बेटर कैप्टन नहीं है, आपके पास उससे बेटर प्लेयर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा जमात को उससे दुश्मनी हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई अच्छा बोलने को तैयार ही नहीं। भैया इतना चिढ़ क्यों रहे हो? उसका एटीट्यूड की प्रॉब्लम आज नजर आई क्या? वो जो भी एटीट्यूड है देश के लिए अच्छा है, जीत रहा है ना, जिता रहा है ना, हमारी औकात बढ़ा रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया भी डरता है, इंग्लैंड भी डरता है, साउथ अफ्रीका भी डरता है, पाकिस्तान, सब डरते हैं ना। अच्छा है, एटीट्यूड हैंडल करो। अगर एटीट्यूड हैंडल नहीं कर सकते तो तरक्की भी नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत का एटीट्यूड था क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, तो पढ़े लिखे आदमी का एटीट्यूड होगा और आपको एटीट्यूड हैंडल करना पड़ेगा। आप एटीट्यूड किसका लेंगे? जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो जो पढ़ा लिखा है, जो इंटेलिजेंट है, जो एग्जीक्यूशन कर सकता है, जो केपेबल है, उसका एटीट्यूड लेना सीखिए। विराट कोहली अगर एटीट्यूड दे रहा है तो उसको हक है एटीट्यूड देने का, आप उसको बर्दाश्त कीजिए। तो आप सवाल उठा रहे हैं कि विराट कोहली को अपना ईगो दबाना चाहिए। अपने ईगो क्यों दबाना चाहिए? क्यों? आपने कौन सा फितूर कर लिया भाई?
आपने कौन सा बड़ा गेन कर लिया कि आप ज्ञान देंगे कि विराट कोहली को क्या करना चाहिए, सचिन तेंदुलकर को क्या करना चाहिए? ये लोग जो करना था कर चुके। सुशांत सिंह राजपूत को जो करना था वो कर चुका। सुशांत ने अगर एटीट्यूड दिखाया तो वो काबिल था, इसलिए एटीट्यूड दिखा रहा था, और आपको एटीट्यूड लेना पड़ेगा। ये 10th क्लास के लोग नहीं बताएंगे कि हमको कौन सा एटीट्यूड लेना है, कौन सा एटीट्यूड नहीं लेना है। 10th पास आउट फेल भी केपेबल होते हैं, ये डिफरेंट इशू है। बट पॉइंट ये नहीं है, अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा है और इंटेलिजेंट है और आपसे ज्यादा मेहनती है, आपसे ज्यादा काबिल है, तो उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। उसको प्रोफेसर बोल के, उसको ज्ञान देवता बोल के ज्यादा इरिटेट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो बताता है आप मूर्ख हैं, वो मूर्ख नहीं है। यस, गो अहेड। सर, और एक बात ये था, प्रॉब्लम शायद बॉलीवुड का था, क्योंकि सुशांत को हर मैटर में पता रहता था, वो रिसर्च करता था, हर चीज पे रिसर्च करता था। उसकी मूवी परफेक्शन के होने की जो और एक रिसर्च ये है कि वो धोनी पर भी रिसर्च करता था, वो सेंचुरी में जब कहते तो वहां पर भी रिसर्च करके, हर चीज में जब कोई परफेक्ट क्यों होता है किसी किसी भी फील्ड में, जब उस फील्ड में उस तरह से वो रिसर्च करके मैदान में उतरता था, तो सुशांत इस तरह का इतना बॉलीवुड बढ़िया होता, इतना काबिल होता, तो लोग साउथ इंडियन फिल्म क्यों देख रहे होते भाई? हाँ, वही तो मुझे बस यही कहना है सर कि सुशांत इज सुशांत। सुशांत के जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई हो सकता है। केपेबल, बट द पॉइंट इज कि जो भी केपेबल है, आपको उसके एटीट्यूड को लेना आना चाहिए। आप परेशान नहीं कर सकते आप उसको। ये नहीं सर, बुलिंग जो है, मैं एक बात कहूंगी, प्रॉब्लम। सुशांत जैसा कोई नहीं है। हो सकता है इंजीनियर है, लेकिन सुशांत का जो हर चीज में नॉलेज। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आप लोगों को भी, सुशांत के फैंस को भी एक चीज बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। सुशांत इज अ सिंबल, यू आर ट्रीटिंग हिम एज एन इंडिविजुअल। Stop treating Sushant as an individual. Treat Sushant as a symbol. There are thousands of Sushant Singh Rajput in this country. You need to create a system जहां वो सुशांत प्रोटेक्ट हो, तब ये सुशांत प्रोटेक्ट होगा। आप इस सुशांत के लिए इंडिविजुअली लड़ रहे हो। What about the rest of the Sushant? This Sushant should be a symbol for the battle that you are fighting here, so that there are no other Sushant in this world. आज भी लोग सुसाइड कर रहे हैं। आईआईटी में कल ही किसी ने सुसाइड किया है। ऐसे सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? बॉलीवुड में लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? बॉलीवुड में लोग आने से कतराते क्यों हैं? उनको लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दिया जाता? जब तक आप सिर्फ इंडिविजुअल सुशांत पे फोकस करते रहोगे, इसका आंसर नहीं मिलेगा। आपको लार्जर पिक्चर देखना है, दैट सुशांत एज अ फेनोमेना, सुशांत एज अ सिंबल, नॉट सुशांत एज एन इंडिविजुअल। सुशांत जिंदा तब है जब दूसरे सुशांत है। अगर सुशांत दूसरे भी मरते ही रहेंगे तो आपके बैटल का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका बैटल ही है टू गेट जस्टिस फॉर सुशांत एंड इंश्योर देयर इज नो अदर सुशांत। बट लोग मरते ही रहेंगे तो फिर मिला क्या आपको? आप कर क्या पाए? आज बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा है तो उसका क्रेडिट आप लोगों को मिल रहा है ना। कम से कम मैं तो दे रहा हूं, बॉलीवुड दे चाहे ना दे, मैं तो दे रहा हूं ना। तो सुशांत की जगह आप 4 और सुशांत को बचा लो तो और क्रेडिट मिलेगा। आप बोलते हैं ना SSR, वही हम लोगों का मोटो होना चाहिए। मतलब सेफ्टी करेक्ट, यस, ये हम लोगों का मोटो होना चाहिए डेफिनेटली। थैंक्स। यस मैनी, प्लीज गो अहेड। तो सर, मेरा तो that's what my main emotion and whatever I feel in this whole journey. I've already spoken to you about it, that as time has passed, I have discovered Sushant, what a unique person he truly was in the real sense, and not only unique but extraordinary. And जो मेरा इमोशन एक्चुअली सुशांत के साथ इंक्रीज होता रहा है, बट देयर वाज वन एरिया वेयर आई यूज्ड टू रियली फील टच्ड, और ये मैंने आपके शो में, जब आप फेसबुक पे शो कर रहे थे उस टाइम पे मैंने बोला था। एंड एक्चुअली दैट इज मोर टू डू विद बिकॉज आई हैव अ वेरी रोमांटिक सोल। एंड जो लग जा गले का सॉन्ग एक वीडियो है which is not सुशांत ने गाया है, जो सुशांत ने गाया है, बट उससे पहले there is another video
which is made but the singer is a band. तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, पर उसमें सारी केदारनाथ की वीडियो स्टिच करके बेसिकली एक स्टोरी रन करती है. इट्स देयर ऑन यूट्यूब एंड एवरी टाइम आई वुड लिसन टू दैट and see that video, I would really cry a lot. It is very emotional. So the lines picturized on Sushant and Sara itself is Yes. It's very. So sir, every time, that is why every time when I come and when all his connection is done with romantic ladies or whatever, for me Sushant and Sara का जो romance था और है, मैं तो अभी भी बोलूंगी है. लगता है सर मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आपने किसी ने भी रिसर्च करी है, सुशांत ने जनवरी में when he went to do shooting in Paris in Dil Bechara, January, when they Sara and Sushant were going out, he has written poems, and in those poems he has again mentioned need. जो जिसके बारे में वो लिख रहा है उसमें बहुत क्लियरली बोला है यू आर माय नीड, और भी बहुत ज्यादा है. मैं अभी ज्यादा डिटेल में जाऊंगी नहीं. एक और लेटर है जिसमें उसने कहा है, I don't know why we are discussing this, has nothing to do with it, but no sir, I am telling you it is another with one me. which appears to be from a scene जहाँ पे बोलता है मुकु की बहन I think was Brinda in that film. Yes. Character is Brinda, right? Yes. I'm good at remembering names, not bad. So अभी अचानक मेरे को नाम याद आया. So he writing in that note कि Brinda, you should have told me earlier. तुमको पहले बताना चाहिए था that मुझे मुक्कू से दूर रहना है, मुझे मुक्कू से दूर रहने की आदत डालनी पड़ेगी. मैं उससे दूर नहीं रह सकता, बट मुझे ये आदत डालनी पड़ेगी. दिस कुड बी पार्ट ऑफ द सीन. अब मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करता क्योंकि है सीन में है. आई थिंक देयर इज वन सीन जहां पर उसकी बहन जाती है उसके पास कहती है, बट उसमें वो लिख रहा है, तो हो सकता है ये पार्ट ऑफ द सीन है. लेकिन जिस तरह से वो लिखा हुआ है, अगर आप दोनों को पढ़ दो ना लेटर को साथ साथ, तो बड़ा गड़बड़ है. सर मैंने तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, और मैं मतलब कि ये लाइक यू आर सेइंग इट कैन बी अनदर शो ऑल टुगेदर, बिकॉज देयर इज सो मच एविडेंस आई हैव as far as Sara Ali Khan and Sushant Singh Rajput is concerned, and Sara's feelings for Sushant. I mean, there are all sorts of shows going on regarding some diaries and all that, जिसमें सारा को तो बहुत ही ज़्यादा बेचारी को लो किया हुआ है. But evidence, if you know Sushant, you will know Sara, what she's doing. So my point is that this show is not about Sara Ali Khan at all. No, sir, what I am saying is, आपने इमोशन की बात करी थी, मैं कह रही हूँ मेरा इमोशन इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा, I was very disturbed. Basically, what you are saying is there will be a lot of people who would be looking at Sushant on a personal terms. So you look at Sushant on personal terms. Yes, but not only, but of course, it's a bigger picture of injustice as well. That's okay. That's part of it. So for it is because of that only, because that you are here. Yes, yes. So, sir, basically, this is the thing that, like I said, that we should carry on and not get laxed and not get disappointed, क्योंकि ये तो हमारे को करना ही पड़ेगा. And I wish Sushant's life is got sacrificed for a reason, और हमारा वो सबकी ड्यूटी बनती है कि वो उस रीजन को हम एंड तक लेकर जाएं, उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए, उसका जो सैक्रिफाइस है. बिकॉज आई सीरियसली फील सुशांत वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही वाज डेफिनेटली समबडी वेरी स्पेशल, एंड उसका एक रीजन था इस वर्ल्ड में आने का. वो रीजन जब वो हुआ है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको एक कंक्लूजन तक लेके जाएं. तो जो भी छोड़कर गए हैं, या जो भी जिनके पास कभी टाइम नहीं होता है, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आप आइए, कभी कभी तो आके बोलिए, चाहे वीकेंड्स पे आके बोलिए. ये शो स्पीक अप इंडिया आप लोगों के लिए क्रिएट किया है. अगर आप लोग नहीं आएंगे तो फिर मुझे फॉर्मेट भी बदलना पड़ेगा. नहीं सर, हम तो आते रहेंगे. आप लोग आज सुशांत पे बात कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग कल किसी और जरूरत पड़ी किसी और टॉपिक पे बात करने की. आपके पास प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को रखना आप लोग की जिम्मेदारी है. आप लोग जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना प्लेटफॉर्म स्ट्रांग होता है. सो आई कीप requesting everyone to come and speak, and when you come be formal, because informally आ जाने से प्लेटफॉर्म पे के परसेप्शन, प्लेटफॉर्म के प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ता है. So I would request everyone who comes on the platform or wants to come on the platform, come formally placed, because informal platform नहीं है, show informal नहीं है, it's a journalistic platform. So you should come formally presentable and then come and speak, and your connection is very important, because
आप कनेक्ट करोगे तभी ये प्लेटफॉर्म पे और भी लोग जुड़ेंगे। और जितने लोग जो पहले से जुड़ते रहे, अगर मैं लॉजिक सोचूं तो वो जो मैंने कहा ना सेकेंड लास्ट एक इंप्रेशन है और इमोशन है, दैट द सिंकिंग फीलिंग, द हिटिंग द डेड एंड। तो अगर इतने सारे लोग जो कल तक आ रहे थे आज नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है शायद मे बी दे आर आल्सो फीलिंग दैट वी हैव हिट अ डेड एंड एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग। सो ये इंप्रेशन देंगे तो और भी लोग डिस्करेज हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस कैंपेन को। अगर आप कैंपेन को आगे ले जाना चाहते हैं तो दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू टू कम। एनीवे टिल 21st वी विल बी टॉकिंग एवरी डे। सो आज आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत 6-7 दिन बाद बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर ऑल कॉट इन बिकॉज ऑफ कोविड, एक कोल्ड भी होता है तो आदमी डर जाता है बहुत ज्यादा। सो दिस इज अ नेचुरल फियर दैट वी ऑल हैव। सो कोल्ड को भी आप बहुत सीरियसली लेने लग रहे हैं, तो दिस इज द एंड कोल्ड थ्रोट इन्फेक्शन कॉमन हो रहा है इस वक्त। सो डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि क्या क्या है, जब तक टेस्ट नहीं कराते पता नहीं चलता है। सो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज टेक केयर ऑफ योर health. If you get time, please do come and speak, because if you come and speak, the platform becomes more lively and others also feel comfortable coming and talking. Yes Manny, conclude. So sir, मेरा यही कहना है कि अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, और ऑफ कोर्स हम बॉलीवुड बायकॉट तो पता ही है कि सब लोग जुड़े हुए हैं, पर ये हो सकता है कि सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है, या लेट हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है। तो आप वीकेंड्स पे आके बात कीजिए, आइए, कभी कभी आइए, ताकि देयर इज मोर पीपल कम एंड स्पीक देयर माइंड, एंड टुगेदर वी स्टे यूनाइटेड across all platforms, and I'm 100% sure victory will always be ours. Justice होकर ही रहेगा सुशांत का, ये मेरे को तो कोई डाउट ही नहीं है, मेरे को पहले दिन से डाउट नहीं है। All right. Yes, sir. Thanks a lot. Thank you. Rejoy is writing a message saying that Sunilji, some people are trying to float the theory that SR is alive. Please negate the intention. I don't need to, Rejoy, because I've already done a full-fledged show on that when I talked about the theories, various theories that are floating. I think people are all intelligent, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अगर सुशांत नहीं तो फिर ये कैंपेन नहीं। अगर आपका कैंपेन वीक हो रहा है तो उसका एक फैक्टर ये भी है, क्योंकि जब कोई जिंदा है तो फिर जस्टिस किसके लिए, ये आप सोचिए कि अगर जस्टिस मांग रहे हैं तो फिर किस लिए, क्यों? क्योंकि सुशांत नहीं है, क्योंकि समथिंग हैपेंड टू सुशांत। और अगर वो फंडामेंटल है कि समथिंग हैपेंड टू सुशांत, तो फिर आपका जस्टिस फॉर कैंपेन जस्टिफाइड है। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर तो कैंपेन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और किससे आप पूछेंगे? रिजॉय फैमिली बोल चुकी है कि इस तरह के उल जुलूल थियरीज का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप और किसकी बात सुने? अगर लोग फैमिली की बात नहीं सुन सकते, उनकी बात नहीं समझ सकते, तो आपकी और मेरी बात क्या समझेंगे? इसलिए मैं उनके इंटेलिजेंस पे छोड़ता हूं। आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। आप सब लोग समझदार लोग हैं, आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग वो कीजिए, बट मेरा मानना है कि आप एक सेकंड के लिए लॉजिकली सोचिए, जस्टिस तो उसके लिए मांगा जाता है ना जिसके साथ कुछ हुआ हो। तो सुशांत के साथ क्योंकि कुछ हुआ है और शायद गलत हुआ है, इसलिए तो आप लोग खड़े हैं। तो अगर सुशांत के साथ कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर जस्टिस किसके लिए? तो आपके कैंपेन को तो कौन वीक कर रहा है और क्यों वीक हो रही है वो आप खुद सोचिए। सो ऑन दैट नोट आई टेक लीव। आई थिंक दैट्स ऑल। रिंकू इज ट्राइंग टू connect for long. Rinku Bala, I think she is not able to connect. I just wish that she could have connected, because I can see her trying to connect, but she is not there. So it doesn't matter. We'll be back at 9 p.m. tomorrow to talk about that one thing that according to you is the most important in the entire campaign. आप सबका जुड़ना बहुत जरूरी है। केवल 2 लोगों के जुड़ने से कल का शो नहीं होगा। कल का शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मेरा बोलना ज्यादा नहीं है, मैं तो बहुत कम ही बोलूंगा। कल मेरा कोई नरेशन नहीं है। लार्जली आपके लिए है ये प्लेटफॉर्म कि आपने जो कुछ भी 19 महीने महसूस किया, आपके मुताबिक वो एक चीज कौन सी है जो सबसे अच्छी, सबसे बुरी, सबसे खुशी देने वाली, सबसे ज्यादा दुख करने वाली या दुखी करने वाली, या सबसे ज्यादा शॉकिंग, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो एक कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपने महसूस किया जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन में ड्यूरिंग 19 मंथ्स। वो कभी भी हो सकता है, शुरू में, बीच में, कल, आज, परसों, कभी भी हो सकता है। वो आपके लिए क्या चीज है? आई विल लाइक टू लिसन टू दैट। सो कल का शो आप सबके लिए, आप सब लोग जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतनी देर वो शो चलेगा। जब तक आप जुड़ते रहेंगे मैं शो करता रहूंगा, जब आप लोग नहीं जुड़ेंगे मैं शो बंद कर दूंगा। दैट्स द फॉर्मेट ऑफ टुमारो शो। दैट्स अ स्पेशल ऑन सुशांत बर्थडे
to listen to what you feel about Sushant Singh Rajput. Please do come and connect in greater numbers tomorrow, because tomorrow's show is only about you and how you feel about the actor who was one from among you. Middle class का अगर कोई representative बॉलीवुड में हुआ है तो दैट इज सुशांत सिंह राजपूत. अगर कोई वर्किंग क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बॉलीवुड में हुआ है तो दैट इज सुशांत सिंह राजपूत. अगर आपके बीच का कोई बॉलीवुड में जाकर उस लेवल तक पहुंचा है तो दैट इज सुशांत सिंह राजपूत. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम एंड स्पीक अबाउट द हीरो दैट यू ऑल आर फाइटिंग फॉर द लास्ट 19 months. Justice for Sushant campaign is all about you. So it's for you to come and speak about him tomorrow. Let's see who all are interested and how much you know about him. What is that one thing that has touched you the most during the last 19 months? On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. Stay safe, stay connected. Please do come back tomorrow at 9 p.m. to talk about it. And the show that is Speak Up India tomorrow will be called Speak Up India for SSR, Sushant Singh Rajput. Speak Up India for Sushant Singh Rajput at 9 p.m. tomorrow. Please do come and connect. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe.